we are studying the future of mankind, and yesterday we read its first page, and if you are with me, then you will be able to recall that according to Russell, there are three things that are going to happen by the end of the century. Either humanity, human life, all life comes to an end on planet Earth. Second, there is an inconclusive war between superpowers who have used nuclear weapons, and then it has annihilated most of the humanity, and then there are few survivors, a doomsday scenario. And the third possibility is that world is unified, and then one single country has monopoly over the weapons. Okay, right. Okay, so then the next paragraph is there. Russell is saying that this present state of heightened tension between the United States and USSR is not going to endure for a longer period of time. And here he was right. Okay. Then he discusses in detail the first possibility. So what are the reasons? So how it is first possibility according to Russell, the extinction of human race, that is not going to happen during the next war. But if war prolongs for a considerable period of time, which allows warring sides to launch attacks on each other with lethal weapons, then this could become a possibility. And then it could be that those people who have survived these massive attacks, if they have the ability, then they will have this. They have in this panic-stricken frenzy stage, they will try to invent more lethal weapons. If they have the capability. So we should revise the whole thing. According to Russell, extinction of human race, this is not going to happen during next war. But this would become a possibility if war continues for a longer period of time. Or we could also envisage a situation in which there is undecisive war and the fighting sides in a frenzied state, they keep on building lethal weapons. So there are scientists, the civilization still survives. ठीक है, और जो जाके ये है कि and then because of use of nuclear weapons, then there will be radioactivity all around, and every living tissue will disintegrate. So it's not just the use of conventional weapons. So we need to differentiate between conventional weapons and the nuclear weapons. So those people who are physics people, then they have to know something. This the hidden potential. Mass has this hidden potential, so somehow that potential has been utilized in some ways. So this would be next war. Then both the sides, in their bid to outmaneuver each other to inflict lethal blow, will be making highly lethal weapons, and then this is how. And then there will be widespread use of nuclear weapons. Use of nuclear intercontinental ballistic missiles will be used. So every mean available at their hand will be utilized in their pursuit of defeating the other side. And then in that case they can destroy the whole humanity. So the whole human existence could be jeopardized. So these are not just fictions of fact of imagination. This is going to happen someday or the other, because so far as our knowledge of astronomy is concerned, Earth is not going to support life for an indefinite period of time. So everything has an age. So जो कि एंड ऑफ द वर्ल्ड सिनारियो है, ये क्या है कि इस तरह तो मतलब, लेकिन ये कहना कि अभी ये सब कुछ हो जाएगा, तो ये ठीक नहीं है. अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ चलते हैं. Although the last, ठीक है, last survivor may proclaim himself universal emperor, लेकिन his
जो है यहाँ पे his reign, हाँ, his reign will be brief and his subjects will be corpses. ठीक है, और फिर जो है जाके some people still keep claiming to be alive, eking out miserable existence. ठीक है, तो हम जो है ना ये एक डिस्टोपियन पिक्चर है, डिस्टोपिया. यूटोपिया एक आइडियलाइज पिक्चर और डिस्टोपिया इज समथिंग विच इज नाइटमेरिश. तो वेरियस नॉवेल्स जो है जो कि 1984 है वो बिग डिस्टोपिया है. ठीक है, तो जो है ना जाके ये है, लेकिन यहाँ पे जो एंड ऑफ द वर्ल्ड है वो भी एक डिस्टोपिया ही है. या जो है ना वो यानी क्या जिसको कहते हैं एपोकलिप्स है ना, एपोकलिप्स से ज्यादा एपोकलिप्टिकल जो है थीम इसकी. चंद जो है ना जाके एक बंदा जो है ना वो क्या हो जाए, जिंदा रह जाएगा और वो एक वाहिद जिंदा, जैसे मूवी है कि लास्ट मैन ऑन प्लेनेट अर्थ, न्यूजीलैंड वगैरह में बनाई गई थी. एक अकेला बंदा होता है और फिर जो है ना जाके ही कैन डू एवरीथिंग दैट ही वांट, बट देयर आर नो ह्यूमन बीइंग्स. सो ही जो है यहाँ पे ये एम्प्टीनेस जो है, एम्प्टीनेस ऑफ एग्जिस्टेंस जो है, ठीक है, तो जो है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग मूवी है. ओके, तो वो जो है यहाँ पे तो वो जो पिक्चर मैंने देखी तो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर स्टिल जो है ना जाके वाज इंटैक्ट. ठीक है, ये नहीं था कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना तबाह नहीं होता, लेकिन ह्यूमन जो बीइंग से, और ये जो है ना ये चीज भी हो सकती है कि प्लांट्स भी रह जाएं, बायोलॉजिकल वेपन्स भी तो हैं. ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि ये जो आखिरी जो सवाल होगा वो अपने आप को कह सकता है कि मैं यूनिवर्सल एम्परर हूँ, लेकिन वो भी क्या हो जाएगा, थोड़ा दिन जिंदा रहेगा और जो है उसका जो रेन जो है ना वो ब्रीफ होगा. उसके सब्जेक्ट्स विल बी कॉप्सेस, डेड बॉडीज, body bags. So what comes to your man? How do you use that word? They will be sent in body bags. When they died and they pack the dead body in a particular, this is a packing, body bags. Okay. तो corpses जो है जाके ये भी है corpses, और जाके and with his death the uneasy episode of life will end. ये जो episode जो है episode of life जो है ना will end, और जो है and the peaceful rocks जो है ना will resolve unchanged until the sun explodes. ठीक है, तो ये जो है ना जाके sun explodes. जैसे मैंने कहा कि हर चीज जो है वो फाइनाइट है इन एज, तो जो है ना सन जो है ना उसकी भी एज है, जमीन जो है उसकी भी एज है. तो ये जो डिसऑर्डर जो है ये तो है हर जगह पे. तो इस वजह से तो जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज दैट मच इम्पोर्टेंट, कीप्स थिंग्स इन डिसऑर्डर. किस तरह जो है ना देन ग्रेजुअली डिसऑर्डर है, इट इवन हाउस हैज ओवर टाइम कंट्रीब्यूशन इन स्प्रेडिंग डिसऑर्डर. ठीक है, जो जमीन जो है यानी क्या हो रहा है, सूरज से वो कह रहे हैं ना कि अच्छा चलें जी आगे डिसऑर्डर यही होता है. डिसऑर्डर जो है कि चीजें जो है ऑर्डर से डिसऑर्डर की तरफ जाती हैं. ठीक है, अब यहाँ के एपिसोड जो है ऑफ लाइफ विल एंड. ठीक है, और यहाँ पे जो ह्यूमन लाइफ है वो भी ये क्या है, ब्रीफ एपिसोड है, होल ड्रामा नहीं है. द होल ड्रामा इज नॉट अबाउट लाइफ, द होल ड्रामा इज अबाउट द अर्थ, its birth, its evolution, and then the earth passing through various ages, geological ages, and then various human beings, various species rising at the scene and then getting extinct with the passage of time, new species emerging. ठीक है, और जो है ना जाके ये जो स्पीसीज वगैरह का आना और फिर थिंक वगैरह का, थिंकिंग बीइंग का. ठीक है, तो जो है कि यहाँ पे है जैसे कि एक मैंने पॉडकास्ट उसमें सुना था कि वो बनाते हैं ना इवोल्यूशन, ये आखिर में एक आधा जाता है इंसान, व्हाट दिस ऑल अबाउट. यहाँ पे सर को वो करते हुए ना कि व्हाट्स ऑल दिस अबाउट. ये कॉन्शियसनेस है ना कि शऊर कि हम यहाँ पे क्यों हैं. ठीक है, तो जो है ना जाके ये भी यहाँ पे वो भी क्या है कि फिर ह्यूमन लाइफ जो है ना इट विल आल्सो कम टू एन एंड. ठीक है, और जो जाके पीसफुल जो है ना जाके रॉक्स जो है ना रिजॉल्व अनचेंज्ड. ठीक है, अंटिल द सन एक्सप्लोड्स, और फिर जो है दैट विल बी द एंड ऑफ एवरीथिंग. लेकिन दिस विल बी अ लोकल अफेयर. सो फॉर रेस्ट ऑफ द यूनिवर्स इज कंसर्न इट विल कीप ऑन गोइंग. ठीक है, तो अब जो है ना यहाँ पे एक है कि क्वेश्चन फॉर कॉस्मिक डेस्टिनी. सो will we fly to the stars? So is that realistic?
Is that really possible? If suppose we look at near him, is it will be possible? Going somewhere at the speed of light, and that requires a tremendous amount of time even then. So is it realistic? Or is that we will have space stations if it becomes Earth? Earth is no longer able to support life, then where we will go? Perhaps the rich, they will find some place, somewhere in massive super space stations where they live and they grow and then agriculture etc. ठीक है, तो ये जो आने एपिसोड है लाइफ विल एंड और जो पीसफुल रॉक्स मीन्स के कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, तो जो इंसान ही है जो कि शोर मचा रहा है, ठीक है, फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी सिग्निफाइंग नथिंग, फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी, ठीक है, तो हॉल ह्यूमन स्टोरी इस वजह से कह रहे आने एपिसोड अनईजी एपिसोड ऑफ लाइफ, इंसान जो है ना ग्रेट डिस्टर्बर है ऑफ द पीस, वो है ना जो वेरियस जो है ना वो जोन्स जो है ना, आई वांट दैट यू शुड हैव जो है ना जाके जो वो जो नॉट हैविंग अ राइट वो है जो मौजूदा जो इंसान वो है वो इंसान से एंथ्रोपोसीन एज, यानी ये एज जो है ना इज डोमिनेटेड वन सिंगल स्पीसी, एंथ्रोपोसीन मीन जो यही जो है मेरा ख्याल में एंथ्रोपोसीन ओके, सो आई कुड बी रॉन्ग है ना कि व्हाट इज द राइट एज है कि ये जो जदीद एज जो है, ये जो जदीद इपॉक जो है जियोग्राफिकल एज है, इसमें इंसान जो है ना एक डोमिनेंट स्पीशी है, ठीक है, तो यानी अगर जो है ना जाके इंसान ना होता तो ये बाकी प्लेनेट जो जानवर हैं क्या जो है ना ये स्पेस क्राफ्ट बना सकते। ये जो पढ़ना लिखने का जो अमल है, एक स्टूडेंट बैठा हुआ है डेस्क के ऊपर और पढ़ रहा है, ये एक्ट भी एक मिरेकुलस एक्ट है। वो जो है ना जाके क्या हो रहा है, नेचर की चीजों के बारे में पढ़ रहा है, ठीक है, गांव में बैठा हुआ कि ये सन है, ये प्लेनेट है, ये वो है, ये पूरी हमारी पूरी जो प्रीवियस जनरेशन का नॉलेज है। अच्छा ये हो गया, एंड देन दिस इज द एंड। नेक्स्ट जो है यहाँ पे, और फिर यहाँ पे perhaps a disinterested spectator might consider this the most desirable consummation in view of man's long record of folly and cruelty, uneasy episode. So, okay, so next जो है ना जाके disinterested spectator would consider this, वो कह रहे हैं किसी वाले से ये जो planet है is a hostile planet, ठीक है, और जो है ये है ना कि एक वो है जो जाके एंटीनेटलिज्म एक मूवमेंट है कि ह्यूमन बीइंग्स जो है ना दे शुड नॉट रिप्रोड्यूस, दे शुड नॉट हैव चिल्ड्रन, all of them they should consider it good that human beings they should become extinct. So they said this is good for us, so why we are prolonging the pain, because when we exist then we also become this aware, we have this awareness, and awareness could be something positive and it could be negative. But the hard fact is that you cannot avoid the question of suffering in human life. ठीक है, सो जो है ना जाके जो डिसइंटरेस्टेड स्पेक्टेटर है, मतलब ये है ना कि ये दुनिया जो है ना जाके बड़ी पेनफुल है बाज़ लोगों के लिए, ठीक है, तो ये जो डिसइंटरेस्टेड स्पेक्टेटर जो है जाके वो जो कि हु इज नॉट इमोशनली इन्वॉल्व्ड, वो कंसिडर दिस द मोस्ट डिजायरेबल कंज्यूमेशन, ये जो रिजल्ट है मोस्ट डिजायरेबल है, क्योंकि इंसान का लॉन्ग रिकॉर्ड है फॉली एंड क्रुएल्टी। हियर वी टॉक अबाउट ideological disputes between the Sunnis and those the Shiites, the Shiites. So, and then unfortunate violence. But sure, Europe is concerned, Europe has this history of communal violence. So, even states, one group of states, one alliance led by Catholic country, one Protestant country, was invading Protestant country, and then these were like religious wars, ideological wars. 30 years war, 30 years what else? From European history, you can have so many examples when because of being fired by the religious enthusiasm and zeal, they go on committing atrocities. Just as Europeans of today, they don't feel triumphant about the Crusades.
So they, Inquisition. Inquisition only. Incursion? Inquisition, Spanish. Yeah, Spanish Inquisition is also there. Spanish Inquisition is also there. So, and then देखे ना कि record of folly and cruelty. मतलब ये ना कि एक जमाने में क्या था, मतलब देखे ना कि war जो है ना, और फिर not only these are religious wars. So I was just giving you an example that how is it that some cases religion becomes the source of divide, and you know that Europeans now they kept Catholicism and Protestantism. They have synthesized. I mean, ये जो है ना जाके, यानी आई एम टेलिंग के जो है ना जाके क्रूअल्टी एंड फॉली, ठीक है, द इंक्विजिशन जो है ना जाके, या जो है ना, और जो है मतलब ये ना कि जो आई कैन साइट सो मेनी एग्जांपल्स ऑफ ह्यूमन, लाइक सो मेनी वॉर्स. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को देख लें, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, मतलब फाइटिंग ओवर टेरिटरी. टेरिटरी और ह्यूमन बींग्स जो है ना जे कि टेरिटरी हैज बीन एक्सचेंजिंग हैंड्स थ्रू हिस्ट्री, ठीक है, लेकिन उसके ऊपर इस हद तक जो है ना जाके आइडियोलॉजीज के ऊपर, ठीक है. तो ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है जो took horrendous toll on human life, took a horrendous toll of life. Use that in your own sentence. ठीक है. तो जो है ना जाके, तो आई कैन गिव यू एग्जाम्पल. सिमिलरली रवांडा की जो जंग है, रवांडा, आई क्लोजली मॉनिटर्ड दैट ऑन BBC वर्ल्ड सर्विस. और जो रवांडा इस तरह यूगोस्लाविया में जो सिविल वॉर जो थी, ठीक है, तो जहाँ के यानी these were atrocities of massive scale, entire genocide of specific people took place. The Hutus और Tutsis जो थे वो उसके तकरीबन 50 लाख लोग मरे. 50 लाख. 50 लाख जो है ना, यहाँ पे जो एक दूसरी जो वो मैंने आई गेव एग्जांपल, चाइना में क्या थी, टाइपिंग रिबेलियन. टाइपिंग रिबेलियन. नॉट ओनली दैट जो है ना जाके, नॉट ओनली वो है इंसान का करप्शन, बस सेम नेचर जो है ना वो भी क्या हो जाती है, नास्टी, जलजले वगैरह और चीजें. तो इस वजह से ये कह रहे हैं ना कि आप देखें ना कि अवेयरनेस है तो पेन है, ठीक है. सपोज के सुनामी जो है आया और लोगों की तकलीफें जो है ना और हुई, और जो यहाँ पे आपको पत्थर हो वो तो फील नहीं करेगा, इंसान तो फील करते हैं. लाइक वी हैव दिस ट्रेजिक इंसिडेंट इन आवर विलेज, सो मेनी यंग पीपल डाइंग विद इन अ सिंगल डे, ठीक है. तो अब जो है ना ये चीजें इम्पैक्ट है ना उसका, तो अवेयरनेस जो है ना ये भी पेन है, और बावकात जो है तो इस तरह ये जो इंसान का जो ये है हॉरिबल. अब तो हम क्या पीस में रह रहे हैं, लेकिन हर वक्त पीस भी नहीं है. तो वी वांट टू हैव एन आइडिया कि व्हाट जो है जंग जो है, टेक पिक्चर एग्जांपल ऑफ अफगानिस्तान, ठीक है. तो अब वो कह रहे हैं कि ये जो है ना जाके डिसइंटरेस्टेड स्पेक्टेटर, वो जो कि यानी क्या है कि क्योंकि जो इंटरेस्टेड ऑब्जर्वर, हम तो इंटरेस्टेड हैं, वी वांट यार, वी आर हियर यार, having this nice time, subsidiary this talim. Nobody wants the news of an asteroid now hitting Earth. It will spoil everything. ठीक है. तो जो है ना जाके हम जो है ना, तो लेकिन वो कह रहे हैं कि जो ये वो जो कि who is not emotionally involved, कोई artificial intelligence, ठीक है, ये भी है ना कि वो जो है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी बहुत ज़्यादा वो मिसालें हैं जो कि इंसान के अगेंस्ट हो जाना. और यहाँ पे भी कह रहे हैं आर्टिफिशियल ये करेगी वो करेगी, पता नहीं करेगी नहीं. सो जो डिसइंटरेस्टेड स्पेक्टेटर समझ आ गई, उसके लिए जो है जाके ये डिजायरेबल रिजल्ट है इंसान का जो लॉन्ग रिकॉर्ड है फॉली एंड क्रूअल्टी. कोल्ड वॉर, कोल्ड वॉर, उसके बाद वियतनाम की जंग, कितनी बर्बरियत, इराक इन्वेजन, अब भी जो है ना जाके जो मिडिल ईस्ट में जो टर्मोइल है, ठीक है ना. ये देखें अब भी इंसान रुका तो नहीं है. क्या यूक्रेन में रुके वो, क्या इसराइल में रुके वो. तो ये जो है जो यानी क्या होगा, डिसइंटरेस्टेड जो ऑब्जर्वर होगा, इफ जो है ना उसमें पावर होगी तो आके इसराइलियों को रोक लेगा. क्योंकि यहाँ पे जो हो रहा है उसमें क्या हो रहा है,
एक इंसान जो है ना क्या हो रहे हैं, दूसरे किस्म के इंसानों को मार रहे हैं. ये है द ब्रूट फैक्ट. But we who are actors in this drama, who are entangled in the net of private affections and public hopes, can hardly this attitude with any sincerity. जैसे वही मेरी बात की है कि who are actors in this drama, है ना, हमारी जो लाइफ है is intertwined with that of the universe. ठीक है, तो हम जो है नहीं, ठीक है, तो हम जो यहाँ पे बैठे हैं ना कि actors in this drama, हम तो बैठे हैं ना कि spectators हैं यहाँ पे. स्पेक्टेटर्स हैं और जो है ना जाके स्पेक्टेटर्स हैं और जो है ना रियलिटी को देख रहे हैं. स्पेक्टेटर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट की रियलिटी. हाउ इट इज, दिस इज डुअलिज्म. डुअलिज्म ये है डेकार्ट का डुअलिज्म. हाँ, माइंड एंड मैटर. हाँ, एक माइंड स्टफ, एक मैटर स्टफ. ठीक है, तो हम मैटर स्टफ जो है ना जो कि कहाँ पे है, इट इज इन आवर ब्रेन्स. And then we are objects of contemplation or the stuff around us. ठीक है, तो ये डुअलिटी है, ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट डुअलिज्म. ठीक है, लेकिन बहुत से लोग जो थे वो इस चीज से एग्री नहीं करते थे. ठीक है, अब जो है ना जैसे कि हम कहते हैं फेनोमेनोलॉजी एक स्कूल है, एडमंड हसल. हाँ, एडमंड हसल. और उसके अलावा जो यानी क्या है कि वो है, what is his name, that beautiful name, मार्टिन हाइडेगर. यस, ठीक है, तो वो जो है यहाँ पे और जो है ना वो ऑल टुगेदर एक नया एंगल है रियलिटी को देखने का. ठीक है, तो जो है ना बजाय सब्जेक्ट जो है ना ऑब्जेक्ट के यानी क्या हो जाता है, वो ये समझते हैं कि बस चले आगे देखें और. तो जो है ना जाके ये जो है यहाँ पे डिसइंटरेस्टेड स्पेक्टेटर जो है उसके लिए डिजायरेबल होगा, लेकिन who we are human beings who are actors entangled in web of private affections, है ना, private affections. देखें ना, the deep bond of love, हाँ, that I feel for you, my daughters, हाँ, their Fafa, my Dada, Bacha, and then every other nice good people. ठीक है, net of private affections and पब्लिक होप्स. ठीक है, तो ये जाके यहाँ पब्लिक होप्स है. पब्लिक होप्स भी तो है, मसलन कौन हु लाइक्स टू रॉक द बोट. ठीक है, हैविंग एवरीथिंग नाइस. हम नहीं चाहते न्यू आइस एज आए, हम नहीं चाहते एनी क्लाइमेटिक चेंज आए. ठीक है, तो जाने कैन हार्डली दिस एटीट्यूड विद एनी सिंसियरिटी. तो वो कह रहे कि हम इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर सकते. कि मतलब क्या है कि ह्यूमन रेस जो है ना वही एंटीनेटलिज्म जो का जो वो है थ्योरी है, फिलॉसफी है कि जो इंसान जो है ना इज द ग्रेट डिस्टर्बर ऑफ पीस एंड ह्यूमन रेस शुड कम टू एन एंड, बिकॉज वी आर जस्ट प्रोलॉन्गिंग आवर मिजरी, वी आर क्रिएटिंग न्यू मिजरी. We have made thousands of experiments and then we have stumbled upon this idea of riches. ठीक है, and this affluence, material comfort, has it added happiness to our lives? ठीक है, तो जो है व्हाट इज ट्रू हैप्पीनेस, तो ये अलग बातें हैं. ठीक है, आप जो है ना इस एटीट्यूड को, आई हर्ड मैन दे से के प्रेफर द एंड ऑफ ह्यूमन मैन टू सबमिशन टू सोवियत गवर्नमेंट. और वो कह रहे हैं कुछ ऐसे भी फाइनेटिक्स मुझे मिले हैं कि क्या हो जाए. ठीक है, सोवियत गवर्नमेंट, सबमिशन टू सोवियत गवर्नमेंट, व्हाट हैपेंस कि हु emerges as victorious, these are the Russians. तो कहना चाह रहे हैं कि so this is how feelings were running in the United States at that time. So you know this idea of McCarthyism. Joseph McCarthy जो था, he started a witch hunt for communist sympathizers in the United States. So various जो है ना जो यानी people from academic profession, teachers etc. at university level, जो है ना पब्लिक फिगर्स जो थे, they were suspected and arrested on the basis of being possible communists or having pro-communist sympathies. ठीक है, तो ये जो है ना विच हंट जो थी, ये इसको मैकार्थीज्म जो था वो क्या था, तो लोगों के लिए जो था. और मैंने ये बताया भी था कि 60s में क्या था कि 60s में यहाँ पे बंकर जो थे वो भी फैशन में थे कि इन द इवेंट ऑफ अ न्यूक्लियर वॉर where common people will take refuge. तो जो है ना जैसे बम होता है बम प्रूफ, जलजला प्रूफ, तो ये इस तरह के बंकर थे जो कि वो जो न्यूक्लियर अटैक उसको भी वो कर सकते थे. समझ आ गई बात?
ठीक है, तो जाके doubtless Russia there are those who say same things about submission to, ये है Western capitalism के बजाय सरेंडर के मर जाना अच्छा है. But this is rhetoric with a bogus air of heroism. वो कह रहे हैं कि ये एक rhetoric है, ये इस तरह की बातें हैं, ये इस तरह का बयानिया है with a bogus air of heroism. ठीक है, nobody is going to take that in that seriously. So it means that just this is a posturing, huh? So nobody really likes to confront himself with the reality of total extinction. So we have this, we have these families, we live in a country, we have this beautiful world, the earth we live in, and then everybody is nice, everybody is healthy, ठीक है, तो कोई भी जाके तो वो कह रहे कि लेकिन ये है ना कि बोगस हीरोइज्म है ना, बोगस हीरोइज्म है, ये रेटरिक है. रेटरिक मीन सिंपली जो है ना, होता नहीं है खाली बातें, बड़ी बड़ी बातें, रेटरिक ये है ना. लेकिन रेटरिक जो है वो क्या है, फिलोसफी एक ब्रांच भी है. And although it must be regarded as जो है ना unimaginative humbug, it is dangerous. लेकिन वो कह रहा है कि अब जो है यहाँ पे unimaginative humbug है, अगर ये यानी क्या है कि unimaginative humbug nonsense है, लेकिन ये dangerous है because it makes less energetic in seeking ways of avoiding the catastrophe. That okay, so हाँ, तो ये बात है कि इट मस्ट बी रिगार्डेड एज अनइमेजिनेटिव. अगरचे हम्बग है, अनइमेजिनेटिव मतलब है कि जो स्टूपिड किस्म के लोग हैं, अनरियलिस्टिक किस्म के लोग हैं, जिनको आइडिया नहीं है कि किस चीज का ट्रू एनॉर्मिटी ऑफ द सिचुएशन, व्हाट इन द केस ऑफ टोटल एक्सटिंक्शन. सो नोबडी लाइक्स टोटल एक्सटिंक्शन. ठीक है, तो जगह डेंजरस है, लेकिन इट मेक्स मैन लेस एनर्जेटिक इन सीकिंग वेज ऑफ अवॉइडिंग द कैटास्ट्रोफी. ठीक है, तो ये है कि इंतहाई हार्ड लाइन है ये. So this is a hard line, it has no flexibility, and if some kind of stubbornness persists, then it can lead to war. So better is that जो है जाके जो both the sides and they should lower the tensions. और ये जो इस तरह की reckless वो है, चाहे जो है ना जाके मर जाना, ठीक है, ये है ना इस तरह के. Suppose के क्या होता है कि you are faced with a scenario of God forbid when anything goes with Pakistan, तो we will जो है ना जाके मतलब वी विल बी वेरी डेस्परेट. तो इस तरह की जो डेस्परेट चीजें सिचुएशंस आती हैं जहाँ पे इमोशंस हाईली चार्ज होते हैं, तो इंसान को जो है ना क्या हो जाता है कि अल्टीमेट जो है ना कैटास्ट्रोफी की तरफ ज्यादा, ठीक है, तो वायलेंट रेज जो है वो मैडनेस. ठीक है, तो ये चीज है अवॉइडिंग द कैटास्ट्रोफी. ठीक है, दैट नॉट टू ड्रीड. ओके, ठीक है जी, ये बात समझ हो गई. मैंने समझा दिया कि वो अब जो है थोड़ा सा कि disinterested जो है spectator would be thinking that this whole thing better it should come to an end. Human story that it should come to an end. And then he's saying, the author is saying that this is just an empty rhetoric, claiming that for us submission to the enemy is the worst scenario. We would prefer rather total extinction. The ending of whole life than submitting to the enemy. But so far as Russell is concerned, he thinks that such kind of views are not taken seriously, and people जो है ना in reality they care a lot about life and they like to avoid catastrophe. और वो कह रहे हैं कि इस तरह के ये जो empty bombast है ना, bombast, चाहे surrender नहीं करेंगे चाहे वो भी है, ये dangerous है. क्योंकि it makes man less एनर्जेटिक, लेस एनर्जेटिक, सुस्ती आ जाती है, या इंसान ये कहता है कि ये जो मैकेनिज्म है हमारा दैट इज फाइन. और जो है वो जो कैटास्ट्रोफी है, कैटास्ट्रोफी तो वही है जो कि फ्यूचर में होनी है, क्योंकि ये जो स्टेट जो है ना हाइटेंड टेंशन, यानी इट कुड लीड टू अ हॉट वॉर, एंड इन दैट both the sides could resort to nuclear weapons. ठीक है, तो जो है ना अब जाके बहुत जो है ना स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट और जो है ना आर एट स्टेक. तो जो कोई भी जो है ना nobody likes to lose face.
ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि इट मेक्स मैन लेस एनर्जेटिक इन सीकिंग वेज ऑफ अवॉइडिंग द कैटास्ट्रोफी. ठीक है, एंड दे प्रिटेंड नॉट टू रीड. हाँ, और जो है यही बात है ना, दैट दे प्रिटेंड नॉट टू रीड, और वो ये कहना चाहते हैं कि हम इस कैटास्ट्रोफी से नहीं डरते. रीड का मतलब क्या हो जाता है? हाँ, रीड, डरना. ठीक है, चाहे जो भी हो जाए. ठीक है, जैसे, ठीक है जी, क्लियर हो गई बात. इस तरह की डेस्परेट थिंकिंग यहाँ पे भी है ना. पाकिस्तान में भी तो हम जो है जाके वी कैन थिंक अबाउट डायर सिचुएशंस. तो ये भी है ना यहाँ पे फर्स्ट स्ट्राइक का दावा और ये वगैरह वगैरह इस तरह की चीजें. ठीक है, और जो है यहाँ पे फिर जो है नेक्स्ट हम पेज की तरफ आ रहे हैं. द सेकंड पॉसिबिलिटी दैट ऑफ रिवर्जन टू बार्बरिज्म. ठीक है, सो वी हैव दिस थर्ड पॉसिबिलिटी, रिवर्जन टू बार्बरिज्म. ठीक है, again reversion to barbarism. According to this is Russell's second possibility. First possibility, total extinction, and now he is going to elaborate on the fact of barbarism which could take place if the war between the two sides is inconclusive, and both the sides fight to the bitter end, and then they exhaust all the means, and then casualties on massive scale, और humanity जो है यानी क्या हो जाती है, जो है ना civilization से बारबरियत की तरफ आ से जाती है. ठीक है, सो इफ यू वांट जो है कंपेयर कि इस वाले से डिस्ट्रक्शन और उसके बाद बर्बरियत जो है ना वो क्या है, तो गाजा इन्वेजन जो है ना, इन्वेजन के बाद गाजा की पिक्चर्स और इन्वेजन से पहले गाजा की पिक्चर्स देखें. ठीक है, तो एक हवाले से ये जो मौजूदा जो तबाह जो गाजा है वो क्या है, बार्बरिज्म है. तो इस तरह ह्यूमैनिटी भी यानी क्या हो सकती है, कैन रिवर्ट टू बार्बरिज्म. अब जो है ना यानी सपोज गाजा को आप मैग्नीफाई करें और तमाम दुनिया में ले आए, हाँ, और यहाँ पे चंद जो है ना आबादी भी घटाते जाए, एनिमी जो है ना जाके कोई एलियन हो या कोई बीमारी, डेडली वायरस इन्फेक्टिंग मोस्ट ऑफ द ह्यूमैनिटी. हाँ, ठीक है, तो चंद ही जो सर्वाइवर बच जाएंगे तो उस तरह की पीसफुल लाइफ तो नहीं गुजारेंगे. That could leave open a likelihood of gradual return to civilization and after the fall of the Rome. ठीक है, तो जो है जाके one of the best documentary जो है BBC Civilization. ठीक है, so he was discussing the fall of civilization, why the fall of civilization take place. So the rise and fall of civilization is very, very deeply philosophical question, and we have Spengler, a German philosopher of history, with his decline of the West, and then we have Hegel, who is again, you know, through his philosophy. Yes, what I was saying, Papa? You were saying about Hegel's philosophy. Yeah, that's right, Hegel's philosophy, yes. So I was saying that, fall of the Rome. I was telling you about BBC's, that documentary series, Civilization. And then according to him, he was somewhere, where, with, in the background, with the background of, Roman ruins in the background somewhere. And then he was talking about the fall of civilization. Fall of civilization. So when Rome fell, this was a civilization which had lasted for centuries, and it was a mighty empire. But then, with the passage of time, it began to lose its strength. So why is it that this loosening of strength takes place? What are the exact reasons? Historical reasons, philosophical reasons. So that is a deeply philosophical question. Hegel is also a philosopher of history. So he has his major contribution. So how history takes shape. Has history some pattern? So that is again a very, very, very interesting topic, and Hegel is a must for any person who likes philosophy or who is interested in history.
ठीक है. सो हेगल इज अ मस्ट. ठीक है. तो जो है जाके ये कह रहा है कि ये जो है रिवर्जन टू बार्बरिज्म. ठीक है. जो है ना जाके दिस होल सिविलाइजेशन क्रम्बल्स, द होल एडिफिस क्रम्बल्स, होल एडिफिस. Dada, I'm using the word edifice. The whole edifice of human civilization crumbles. And then humans they revert to barbarism. When resources are scarce, then you will fight over the resources like animals. This is what they show in these movies. These movies having apocalyptical themes. ठीक है. कि जो है और जाके जो है जाके और फिर जो है यहाँ पे और उसके बाद हो सकता है कि क्या हो, ग्रेजुअली सिविलाइजेशन रीबिल्ड हो. अब देखें जब रोम का जो फॉल हुआ उसके बाद इस तरह ये तो नहीं था कि यूरोप वेंट थ्रू steady decline, and nothing, no progress ever took place. Even during Middle Ages we had seen the establishment of an empire, Holy Roman Empire. Charlemagne जो था, शार्लेमेन इस तरह जो है जाके तो जाके मेडिवल एजेस या डार्क एजेस जो है जाके यानी वो क्या था, उसके बाद सिविलाइजेशन रीबिल्ड होना शुरू हो गई. ग्रीस और जो यानी जो रोम जो था उसका मॉडल क्रिश्चियनिटी के साथ, फिर वो जो था यूरोप में तरक्की. फिर जाना यूरोप में मुख्तलिफ एजेस देखते हैं. ठीक है. तो साइंटिफिक एज है, एज ऑफ डिस्कवरी है वगैरह वगैरह, रेनेसांस है, साइंटिफिक रेवोल्यूशन है वगैरह वगैरह, विक्टोरियन एज है, ये मॉडर्न एज है साइंस की करिश्मे. ठीक है. तो सिविलाइजेशन रीबिल्ड हो गई ना. और वो इलाके जो कि क्या थे एक जमाने में ढाई वैशी थे, वहां पे जो डिसेंडेंट्स वहां पे जो है इस तरह के जैसे डेनिश थिंकर सोरन केकिगार्ड. ठीक है. तो डेनिश थिंकर वो हो गया, वो जो है और जो क्वांटम फिजिसिस्ट हैं वो तमाम के तमाम स्कैंडिनेविया के एक दौर के बारबेरियंस जो है ना, अगले दौर के मोस्ट हाईली सिविलाइज्ड लोग. ठीक है. तो सिविलाइजेशन हो गई ना रीबिल्ड. ठीक है. सो फाफा, नाउ आर यू अंडरस्टैंडिंग? आई एम सरप्राइज्ड एट योर लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग. This essay's language is very difficult. No. Okay. So you keep on listening. So as a fall of Rome, ठीक है. So जो है writer is basically comparing the hypothetical position of human beings resorting to barbarism when the whole world collapses almost because of nuclear wars, because of some other catastrophe, and then these survivors, they keep on living, and then gradually civilization takes a new start. Because human beings, they have this ability, have this desire to improve things. So things will keep on growing with the passage of time, and civilization will be rebuilt. Okay. तो जो है जाके लेकिन यहाँ पे जो है हम जो है सेकंड पॉसिबिलिटी वो बेसिकली किस चीज की है? अगेन फॉर फाफा सेज आई लाइक टू गिव समरी. रसल बेसिकली वो यही कहना चाह रहा है कि क्या होगा कि जो है ये जो है ना रसल कोल्ड वॉर के जमाने में लिख रहा था. उस जमाने में सोवियत यूनियन और यूएसएसआर एक दूसरे के साथ शदीद दुश्मनी थी. ठीक है. ठीक है. और जो है जाके दोनों एक दूसरे को तबाह करने का इरादा था. आइडियोलॉजीज फौजी जो है ना हवाले से तमाम के तमाम जो वेपन जो थे वो क्या थे, वो टारगेटेड एट ईच अदर. ठीक है. तो ये रसल उस दौर में लिख रहा है और उस दौर में बहुत ज्यादा खतरा था. तो इस वजह से वो कह रहा है कि एक पॉसिबिलिटी है कि यानी क्या हो जाए कि तमाम तर जो है ना जाके इस जंग जो है ना ऐसी फूट पड़े कि इसके दरमियान अमेरिका और रूस और उसके इत्तेहादियों की, जिसके नतीजे में क्या हो तमाम तर जो है ना ग्रेजुअली ह्यूमन लाइफ ही खत्म हो जाए. ठीक है. बात समझ आ गई? ठीक है. हाँ ठीक है. तो या जो है जाके जंग की वजह से क्या हो जाए, या जो है ना जाके इनकंक्लूसिव वॉर है, न यूएसए जीता है या यूएसएसआर जीता है, और फिर वहां पे तमाम तरह इंसान जो है ना वो बिल्कुल वहशियों की तरह रहते हैं. लेकिन हो सकता है कि आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को रीबिल्ड करना शुरू करें. ठीक है. तो ये जो है जाके ठीक है
तो जो है कि अब ये जो है यहाँ पे जो है क्या है कि वो आगे फ्यूचर को इन्विजिज कर रहा है. सो आर वी आर नॉट, आई एम नॉट सेइंग दैट रसल वाज पैरानॉइड. So why he was conjuring up these doomsday scenarios, the end of the world scenarios? Why? Because he was living during cold age, and then there was a real threat of United States and USSR going to war, and then this war in that case would have included the use of nuclear weapons on a massive scale. So massive annihilation जो है would have taken place. Humanity itself would have come to an end. So that was a real fear. But these fears have subsided, but now we are again confronting the same scenario. Tensions are running high again. West and Russia are having hostile relationship. They are having war in Ukraine. So this is something for which we shouldn't feel complacent. So there is again possibility of further escalation. A situation can spiral out of control